ओके प्रभु। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनंदन व्रज जनरंजन, यशोदनंदन व्रज जनरंजन, यमुना तेरा वनचारी, यमुना तेरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनंदन व्रज जनरंजन, यमुना तेरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद, भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Gurudeva Jaya Gurudeva Harinam Sankirtan Mahotsav ki jai Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Maharaj ki jai Nitai Gaur Perimanande Hari Hari Bol Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Naruttamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Nashtuki. Sri Krishna, welcome you all. I was thinking, after I joined your class, so many people have left. So please don't blame me that they have left. so near future, don't tell me Prabhuji came and everybody, they ran away from here. No. No, not that, Prabhu. They are missing out on the Bhagavad Prasad. That's it. Yes, yes. They are the ones who are missing out. You are giving us the Amar Puran knowledge, and they are missing out. That is the only they are unfortunate. So today we'll be taking text 20 onwards from Canto 2, Chapter 3, entitled Lord in the Heart. So text 20. Vile Batur Krama Vikramanaye Na Sharanavata Karnapute Narasya Jiva Sati Daduri Keva Shuta Na Chopagaya Tyagurugaya Gata Vile Batur Krama Avikramanaye Na Sharanavata Karnapute Narasya Jivyasate Dadururi Vekasuta Na Chopagaya Tyagurugaya Gatha Bile Baturu Krama Avikramanaye Na Sharanavata Karnapute Narasya Jivyasate Daduri Kevasuta Na Chopagaya Tyagurugaya Gatha. What meaning? Bile snake holes, Vatha like Puru Karma, the Lord who acts marvelously, Bikraman promises, yea, all these, na never, Saranavata heard, Karana Pute, the ear holes, Marasya of the man, Jiva tongue, Asate useless, Dadurika of the frogs, Eva exactly like that, Suta or Suta Goswami, na never, Cha also, Upagayati, chant loudly, Urugaya, worth singing, Gatha songs. Translation and purport by His Divine Grace, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. One who has not listened to the messages about the prowess and marvelous acts of the personality of Godhead and has not sung or chanted loudly the worthy songs about the Lord is to be considered to possess ear holes like the holes of a snake and a tongue like the tongue of a frog. Lovely purport by Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Devotional service to the Lord is rendered by all limbs or the parts of the body. It is the transcendental dynamic force of the spirit soul. Therefore, a devotee is engaged 100% in the service of the Lord. One who can engage in devotional service when the senses of the body are purified in a relation with the Lord, and one can render service
to the Lord with the help of all the senses. As such, the senses and the action of the senses are to be considered impure or materialistic, as long as they are employed only in sense gratification. The purified senses are engaged not in sense gratification, but in the service of the Lord in toto. The Lord is the supreme with all senses, and the Savior, who is part and parcel of the Lord, has also the same senses. Service to the Lord is the completely purified use of the senses as described in Bhagavad Gita. The Lord imparted instruction with full senses, and Arjuna received them with full senses. And thus, there was a perfect exchange of sensible and logical understanding between the master and the disciple. His spiritual understanding is nothing like an electrical charge from the master to the disciple, as foolishly claimed by some propaganda mongers. Everything is full of senses and sense and logic, and the exchange of the views between the master and disciple is possible only when the deception is submissive and real. In the Chaitanya Charitamrita, it is said that one who should receive the teachings of Lord Chaitanya with the intellect and full senses, so that one can logically understand the great mission. In the impure state of living beings, the various senses are fully engaged in mundane affairs. If the ear is not engaged in the service of the Lord by hearing about Him from Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam, certainly the holes of the ear will be filled with some rubbish. Therefore, the message of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam should be preached all over the world very loudly. That is the duty of a pure devotee who has actually heard about them from a perfect sources. Many want to speak something to others, but because they are not trained to speak on the subject matter of the Vedic wisdom, they are all speaking nonsense, and people are receiving them with no sense. There are hundreds and thousands of sources for distributing mundane news of the world, and the people of the world are also receiving it. Similarly, the people of the world should be taught to hear the transcendental topics of the Lord, and the devotees of the Lord must speak loudly so that they can hear. The frog loudly croak, with the result that they invite the snakes to eat them. The human tongue is especially given for chanting the Vedic hymns and not for croaking like the frog. The word asati used in this verse is also significant. Asati means a woman who has become a prostitute. A prostitute has no reputation for good womanly quality. Similarly, the tongue, which is given to the human being for chanting the Vedic hymns, will be considered a prostitute when engaged in chanting some mundane nonsense. Om Ajnanatimirandasya Jnananjansalakaya Chatmirtamenam Tasmai Sri Gurube Namah Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitamene Bhutale Swayam Rupakadamayam Dadati Supadantikam Bandeham Sri Guru Shadapadakammalam Sri Guru Vaishnavamcha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathan Vidantam Sajivam Sadhvitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakhanvitancha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatapati Gopesa Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Taptakantana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishwanusade Devi Pranamami Hari Priye Vangshakalpataruvyasya Kripa Sindhuvayavacha Patidanam Pavanebhyo Vaishnave Namo Namah Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Pishtaya Bhutale Srimate Japataka Swaminiti Namane Namacharya Padaya Nitai Kripa Pradane Gaurkata Namadaya Nagar Gram Tarane Namo Vishnu Padaya Krishna Pishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi
गौरवाणी प्रचारणी निर्विशेषणवादी पाश्चात देश तारणे वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपालको. So we heard from Sonika. He's sitting down. Hare Krishna, Prabhu, 1 minute, 1 second, I want to interrupt. Please don't mind kindly. ये आप भागवतम हिंदी में बोलिए क्योंकि मजा नहीं आ रहा. अब जो आप हिंदी में बोलेंगे तो ज्यादा मजा आता है. ये बिल्कुल सही है एकदम. आप हिंदी में प्लीज बोलिए. अभी वो दो एक के लिए इंग्लिश में बोलना ये शोभनीय नहीं है. आप हिंदी में बोलिए कल से. नहीं तो आज से बोलो कोई बात नहीं. No, that is my humble request, please. Okay, Prabhu, you can continue Hindi. And Mridula Mataji is going on vacation for quite a long time. Yes. So now that is also not there. So Hindi is fine. দর্শনাথ প্রভু কিছু মনে করো না. আমি এমনি না আমি তো হিন্দি তো জয়শ্রী রাধিকার জন্য. হিন্দি হলে তো আমার জন্য সুবিধা হয় প্রভু. হ্যাঁ, কারণ হিন্দিতে উনি এত সুন্দরভাবে বলে, ইংরেজিতে মজা আছে. I am your order carrier. I will execute the order as directed by the masters. Good order. असं नाही प्रभू, रिक्वेस्ट आहे प्रभू. Nobody is there today, so I want to say it loudly that you please speak in Hindi. Please. Yeah, that's fine. That is my request. No problem. Thank you very much. No problem. Sorry to. No, it's okay. See, he's speaking in Bhagavatam, whether in Bengali, in English, in Hindi, in Malayalam, in Spanish, is the message of the Krishna. It should be delivered for the pleasing the soul of those who are listening. Very good. Thank you. Very good. Thank you. तो मैं हिंदी में पढ़ता हूँ. जिसने भगवान के शौर्य तथा अद्भुत कार्यों की कथाएं नहीं सुनी हैं तथा जिसने भगवान के विषय में गीतों को गाया या उच्च स्वर में उच्चारण नहीं किया, उसके श्रवण रंग मानो सांप के बिल हैं और जीव मानो मेंढक की जीव है. तो हम सुन रहे हैं सौनका ऋषि से. सौनका ऋषि बैठे हैं नैमिषारण्य में और वहां बैठे हैं. क्यों बैठे हैं? उन्होंने कहा कलिमागतमाग्नाय क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीनं दीर्घसत्रेण कथायां सचक्षणा हरेः. ये सुत गोस्वामी, हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं क्यों? कलिमागतम आज्ञाय, कली शुरू हो गया है. क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम्, और अभी क्षेत्र में नैमिषारण्य में बैठे हैं. आसीनम, हम बैठे हैं दीर्घ सत्रेण, बड़े लंबे समय के लिए. ये नहीं कि 1-1.5 घंटे की बात नहीं हो रही है, लंबे समय के लिए. और वो लंबा समय था 1000 साल. देखिए 1000 साल तक जब कथा सुनी और फिर बताओ क्या बोलते हैं? वयम तो न वित्रप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यक्ष शरणावतम रसम ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे. हे सुत गोस्वामी, हमें अभी तृप्ति नहीं हुई है. प्लीज और बोलिए, और बोलिए, और बोलिए. वयम तो न, हम सब. और वो सब उनकी मान की बात सुन रहे थे, जो लोग 28 बैठे हैं. और सब उनका एक निर्णय था. आज हम श्लोक पढ़ रहे हैं, जो पिछले 3-4 दिन पढ़ रहे हैं, यह है आत्म साक्षात्कार और सौनक आदि ऋषियों का. वो प्रेरित करें सुत गोस्वामी को, ताकि गुरु महाराज जो आपने बताया हमने सुना और ये मेरी रियलाइजेशन है. तो बोलते हैं जिन लोगों ने भगवान के अद्भुत कर्मों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में नहीं सुना, उनके जो कान है ना, सर्प के कानों की तरह है. सर्प के जो कान होते हैं उसे छेद होता है लेकिन सुनाई कुछ नहीं देता. सर्प से उनके वाइब्रेशन से, उसके जो बॉडी में जो वाइब्रेशन मिलता है, साउंड का वाइब्रेशन, उससे उसका पता चलता है. या जीभ से जो वो सूंघता है, बस उसके बाद कान काम नहीं करते.
तो कहते हैं वो आदमी, वो व्यक्ति जिसने मनुष्य जीवन लिया है, अगर भगवान कृष्ण की कथा नहीं सुनी तो उसके जो कान है ना वो सर्प के बिल की भांति है। और जिस जीवा ने हमने सुना वाचो वेगम मन क्रोध वेगम जीवा वेगम उधर उपस्थ वेगम, ये जो हमारे वेग है ना, ये हमारी इच्छाएं है बोलने की, चखने की, ये तब तक अशुद्ध है जब तक भगवान का प्रसाद ना लिया हो, भगवान के बारे में ना बोला हो। और या आज कह रहे उच्च स्वर में। अब उस स्वर में क्यों कह रहे हैं कि जब 8000 बैठे थे तो सूतो गोस्वामी उच्च स्वर में बोले थे, तभी तो लोगों को सुनाई देगा। तो बोला हाँ ये सही है, आप सही कह रहे हैं, उच्च स्वर में बोलिए। प्रभुपाद जी ने कहा कि चैंटिंग आप उच्च स्वर में कीजिए, आप मन में भी कर सकते हैं, उसमें भी कर सकते हैं, या दिल में भी बोल सकते हैं, लेकिन उच्च स्वर में बोलने से ज़्यादा फायदा है अपना भी और उन लोगों का भी जो जीव जंतु तुम्हारे नज़दीक हैं, पेड़ पौधे उनका भी। तो एक श्लोक आता है कहीं, यो न शृण्वन्ति न गृह्णन्ति श्रीमद्भागवतम् सत्यम सत्यम परम सत्यम ऐसा स्वामी सदा यमः। जिसने कभी श्रीमद् भागवतम ना सुनी हो, श्रीमद् भागवतम ना बोली हो, भगवान का नाम नहीं ले हो, ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है, उसका स्वामी यमराज है और कोई नहीं। सत्यम सत्यम परम सत्यम ऐसम स्वामी सदा यमः। या जैसे कल परसों बात कर रहे थे, कभी कभी हम क्या करते हैं, जो हम कार्य करते हैं हम दिल से नहीं काम करते हैं। एवं प्रसन्न मनुष्यो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संग जायते। हम खुशी से नहीं करते, यह कंपल्सन है। अरे यार नहीं जाऊंगा तो क्या बोलेंगे। मैं भी कई बार जब मैं बहरीन में था तो मैं मंगल आरती के लिए जाता था। सिर्फ एक वजह थी मंगल आरती जाने की, कि लोग क्या कहेंगे कि ये नहीं आ रहा है। बस कोई चाव नहीं था, कोई मजा नहीं था। जबरदस्ती उठना, नहाना, तिलक लगाना, फिर अरे यार जाने तो वो क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे। तो एवं प्रसन्न मन नहीं था। लेकिन अब क्या किया जाए, धीरे करके धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा तो ऋतवाई फल। धीरे धीरे करके लत लग गई। तो भगवान का नाम स्नेहात भयात द्वेषात, प्यार से या डर से या द्वेष से लिया जाए, भगवान भली करेंगे। तो कह रहे हैं, सबको बता रहे हैं, देखिए भगवान ने जो आपकी इंद्रियां दी हैं, ये सारी की सारी इंद्रियां अगर भगवान के लिए न काम आए तो बिल्कुल बेकार है। सारी इंद्रियां। किसी ने हमसे प्रश्न किया कि प्रभु जी ये जो सेक्सुअल इंपटस है इसको भगवान में कैसे आप उसको वो कर सकते हैं, डोबिटोल कर सकते हैं। मैंने कहा यूज ओनली फॉर द प्रोक्रिएशन ऑफ द प्रोजेनी, दैट्स इट। बोले ये संभव है? हाँ संभव है, क्यों नहीं संभव नहीं है। जो करेगा संभव है, जो नहीं करेगा उसको असंभव है। तो यानी कि जितनी इंद्रियां हमारी हैं, चाहे आँख हो, नाक हो, कान हो, मुंह हो, दांत हो, हाथ हो, पैर हो, कुछ भी हो, सारे के सारे भगवान की सेवा में लगनी पड़ती है, तभी जाके हमारा उद्धार होगा, वरना उद्धार बड़ा मुश्किल है। ये नहीं आजकल कि आपने $1 डाला, नीचे से पेप्सी मिल गई या ठंडे पानी की बोतल मिल गई और आपने पिया और मजा आ गया। नहीं, इसके लिए तप करना पड़ता है। और गुरु महाराज के फेमस लोग, आराधितो यदि हरिम तपसा तत किम, नाराधितो यदि हरिम तपसा तत किम, अंतर्बहिर्यदि हरिस तपसा तत किम, नांतर्बहिर्यदि हरिस तपसा तत किम। हम समझते हैं तप करने के लिए हमको जो है या तो जंगल जाना पड़ेगा या कहीं जाके हमको वीराने में जाना पड़ेगा। उनको मालूम नहीं है शास्त्रों का अध्ययन, पठन पाठन, मनन चिंतन भी तप है।
तप का मतलब ये नहीं है कि आप जो है हिमालय में चले जाएं या जनवरी फरवरी के महीने में आप जो है गले तक पानी में डूब जाएं तब आप मंत्रों को चाण करें। नहीं, शास्त्रों का पठन पाठन मनन चिंतन भी तप है और सबको तप करना चाहिए। तो गुरु महाराज कहते हैं आराधितु यधिहरिम, अगर आप भगवान की आराधना कर रहे हैं तो तब की क्या जरूरत है। अब हम आराधना करेंगे तो शास्त्रों को कोट करेंगे नहीं करेंगे है? वो भी तो तप है। नाराधितु यधिहरिम, और अगर आपने भगवान हरि की आराधना नहीं कर रहे हैं तो तपस्या क्यों, उस तप की क्या जरूरत है। आजकल बहुत सारे शास्त्र हैं और बहुत शानदार है। श्रीमद् भागवत में नहीं शायद पद्म पुराण में है, किम शास्त्रैर किम श्रुतैर बहुवीर शास्त्रे ही पुराणा च भरमा वही इदम एकम श्रीमद् भागवतम मुक्तिदानेन गर्जति। क्या जरूरत है, व्हाट इज यूज ऑफ हियरिंग एंड लिसनिंग सो मेनी शास्त्र, व्हाई पुराणा से भरमा वही। ये पुराण जो है लोगों को भ्रम में डालते हैं, भ्रमित करते हैं। इदम एकम या एक ही भागवतम है। इदम एकम मुक्तिदाने इदम एकम श्रीमद् भागवतम मुक्तिदाने न गर्जति। ये बोलती है मैं तुम्हें मुक्ति की ओर लेके जाऊंगा। अब आपको कौन सी मुक्ति चाहिए, आपकी मर्जी है। सारूप्य, सालोक्य, सारिष्टि, सामीप्य या साहिज्य। भागवतम आपको वहां जाने का रास्ता बताती है और आपको रास्ता नहीं बताएंगे और आपको जो है यहीं लिप्त कर देंगे। जैसे शास्त्रों में हमने पढ़ा कि अगर आपको इम्पर्सनल ब्रह्मन के जाना है तो ब्रह्मा जी की पूजा कीजिए। पावरफुल सेक्स चाहिए तो इंद्र की पूजा कीजिए। गुड प्रोजेनी चाहिए तो प्रजापति की पूजा कीजिए। गुड फॉर्च्यून चाहिए तो दुर्गा देवी की पूजा कीजिए। पावर चाहिए तो अग्नि की पूजा कीजिए। मनी चाहिए तो वरुण की पूजा कीजिए। टू बी द ग्रेट हीरो तो रुद्र की पूजा कीजिए। टू द लार्ज स्टॉक ऑफ ग्रेन चाहिए तो अदिति की पूजा कीजिए। हेवनली प्लैनेट चाहिए तो आदित्य की पूजा कीजिए। वर्ल्डली किंगडम चाहिए तो विश्व देव की पूजा कीजिए। पॉपुलरिटी अमंग द पीपल चाहिए तो साध्य की पूजा कीजिए। लॉन्ग स्पेन ऑफ लाइफ चाहिए तो अश्विनी कुमारों की पूजा कीजिए। स्टैंड हैप्पी आपको बॉडी चाहिए तो अर्थ की पूजा कीजिए। स्टेबिलिटी ऑफ द पोस्ट चाहिए तो अर्थ और होराइजन की पूजा कीजिए। अगर आपको ब्यूटी चाहिए तो गांधर्वों की पूजा कीजिए। अगर आपको गुड वाइफ चाहिए तो अप्सराओं की या उर्वशी की पूजा कीजिए। अगर आपको दूसरों पे कंट्रोल करना है तो लॉर्ड ब्रह्मा की पूजा कीजिए। अगर आपको टेंजिबल फेम चाहिए तो लॉर्ड यज्ञ की पूजा कीजिए। अगर आपको गुड बैंक बैलेंस चाहिए तो वरुण की पूजा कीजिए। अगर आपको विद्या चाहिए, वास्ट लर्निंग चाहिए तो शिव की पूजा कीजिए। गुड मैरिटल रिलेशन चाहिए तो उमा की पूजा कीजिए। स्पिरिचुअल एडवांस चाहिए तो लॉर्ड विष्णु या इस डिवोटी की पूजा कीजिए। प्रोटेक्शन फ्रॉम हेरिडेटरी एडवांसमेंट एंड डायनेस्टी तो वेरियस डेमिगॉड की पूजा कीजिए। डोमिनेशन ओवर द किंग एंड एम्पायर तो मनु की पूजा कीजिए। विक्ट्री ओवर अदर्स चाहिए तो आप डीमंस की पूजा कीजिए। और सेंस ग्रेटनेस चाहिए तो मून की पूजा कीजिए। सब बताती है श्रीमद् भागवतम। जिसको जो चाहिए सब है, जिसको जो चाहिए। वो ये नहीं कह सकता कि श्रीमद् भागवतम मेरे लिए कुछ नहीं है। तुम्हारे लिए भी है, सबके लिए है। चाहे कोई साकार हो, निराकार हो। जैसे अपने सुन लिया पिछले उसमें सौनका से, अकाम सर्वकाम हुआ मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगे न ये जीता पुरुष परम। लेकिन मान के चलिए अब हम सब इंद्रिय तृप्ति में ज्यादा लिप्त हैं। मान लीजिए कोई हरे कृष्ण महामंत्र गा रहा हो, ट्यून से नहीं गा रहा हो, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको अच्छा, आप अब क्या सोच रहे हैं, आप मंत्र नहीं सुन रहे हैं, आप ट्यून सुन रहे हैं। वो आदमी कैसे भी गा रहा हो। एक बार परवा जी बम्बई में थे तो कोई इंग्लिश लड़का था और वहाँ बड़ा कंसर्ट होने वाला था। तो उसने क्या किया, वो हरे कृष्ण महामंत्र गाने लगा पाइप बैंड पे, इस पे बड़ा शोर मचा रहा था। प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। वो जब बजा के थक गया, जब चुप हो गया
तब प्रभुपाद ने बोला, हैज यू फिनिश्ड? यस फिनिश्ड, थैंक गॉड। गाते समय प्रभुपाद ने नहीं कहा, लेकिन उसके बाद कहा थैंक गॉड। तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, माना कोई बेसुरा हरे कृष्ण महामंत्र गा रहा हो, आपको मजा नहीं आएगा। क्यों? आप हरे कृष्ण महामंत्र नहीं सुन रहे हैं, आप ट्यून, जो कर्ण प्रिय ट्यून सुनना चाहते हैं, और यहीं पे हम धोखा खा जाते हैं। भगवान का नाम राम कृष्ण और हरे कैसे भी कोई ले, उल्टा ले सीधा ले, उसका असर होता है। कहा जाता है जब किसान खेती करने जाता है, खेत में हल लगाता है, उसको जोतता है, और तब अपने हाथों से जब बीज छिड़कता है, तो हर बीज सीधा पड़े ये जरूरी नहीं है। हर बीज सीधा नहीं पड़ सकते, कोई सीधा पड़ेगा, कोई उल्टा पड़ेगा, कोई टेढ़ा पड़ेगा, कोई अपसाइड डाउन पड़ेगा, कोई डाउन साइड अप पड़ेगा, कोई ऐसा पड़ेगा, कोई वैसे पड़ेगा, कभी 2-3 इकट्ठे पड़ेंगे, कभी एक अलग पड़ेंगे, लेकिन कालांतर में वो सब रेक्टिफाई होते हैं। तो इसीलिए कि अगर आप कभी किसी को हरे कृष्ण महामंत्र गाते हुए सुनो ना, प्लीज आनंद से सुनिए, ट्यून पे मत जाइए, उन वर्ड पे जाए जो बेचारा बोल रहा है। पता नहीं मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ, लेकिन जनरली ये होती है कि वी आर रियली, जो हम हरि नाम है ना, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। जो 3 पावरफुल नेम है, उसको कोई कैसे गाए, चाहे बच्चा गाए, बूढ़ा गाए, चाहे दांत वाला गाए, बिना दांत वाला गाए, अगर वो गा रहा है ना, उसको गाने दीजिए, सुनिए। अदरवाइज आप नहीं सुनेंगे तो हमारे कारण जो है ना, हमने बता दिया, सर्व की भांति होंगे। अगर आपने जीवा से भगवान का प्रचार नहीं किया तो जीवा होगी फरोकी। फरोकी क्या मतलब, पूर्व में क्या बोलते हैं, जब वो टटर करता है ना जोर जोर से, तो बेचारा सांप जब बहुत दूर होता है, पानी में जब उसकी वाइब्रेशन मिलती है तो उसे पता चल जाता है कि ये मेंढक इधर है, और बेचारा मेंढक को खा देता है। तो हमें भी टटर नहीं करना है। टटर यानी स्पीकिंग नो, वट एवर रिक्वायर्ड फॉर अवर लिविंग, दैट इज अलाउड, अदर देन दैट इज नॉट अलाउड। कल मैं किसको बोल रहा था साहब, आप लोगों को मैंने बोला कि पहले लोग झूठ बोलते थे ना, तो आमने सामने बैठ करके झूठ बोलते थे। झूठ बोलना है ठीक है भाई, आदत होती है, कुछ होता है, कुछ छुपाना होता है, नहीं छुपा। लेकिन आजकल झूठ जो है, कमरे में बैठ करके आप व्हाट्सएप पे हजारों झूठ बोल सकते हैं, हजारों झूठ बोल सकते हैं। और आजकल क्या होता है कि बोला आई लव यू, अबे 40-50 लड़कियों को भेज दो, बोलता कोई तो जवाब देगा, कोई तो जवाब देगा। अब ये है हमारी कहानी आज का। तो हमारे अपने कानों को है क्या, शरणवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ये भद्राणी विदनोति सुता। ये कानों के द्वारा शरणवताम स्वकथा कृष्ण, भगवान की ही कथा सुनिए। अब बोले कैसे पॉसिबल है भाई, आजकल तो आईपॉड भी हैं, मोबाइल में सब हैं, इंटरनेट आजकल फ्री, ऑलमोस्ट फ्री हो गया, अगर हम सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। लेकिन बोल फिर काम नहीं करें, कौन बोलता काम मत कीजिए, बराबर काम कीजिए। आपको काम करना है, काम कीजिए, लेकिन अपना बैक बर्नर है ना, बैक बर्नर में वॉइस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन भौतिक जो मान्यताएं हैं, गुरु महाराज को किसने पूछा कि गुरु महाराज हम जब काम में व्यस्त रहते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र कैसे चांट करें? तो गुरु महाराज ठीक है, काम शुरू करने से पहले बोलो हरिओम तत्सत, और भगवान से बोलो भगवान मैं जो करने जा रहा हूँ प्लीज रिद्धि दीजिए, सिद्धि दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए, विवेक दीजिए, और जब खत्म हो जाए धन्यवाद कीजिए कि आपके विवेक से, आपके विवेक से, आपकी अनुकंपा से, आपकी कृपा से ये काम में सफल कर पाए। इतना तो कर सकते हो, बोला तो कर सकते हो तो करो, क्योंकि भगवान का नाम है ना, यश स्मरण मात्रेण जन संसार वंदना। भगवान का लिया गया एक नाम भी हजारों लाखों दुखों को जो है छुटकारा पा सकता है। स्वल्पम विधर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भय क्या है? जीवन मृत्यु का तो भय है ना, जीवन मृत्यु का भय है, तो भय को दूर करने के लिए भगवान का नाम। अब जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि भागवताम के हर श्लोक में शिक्षा है,
ये खाली आई वॉश नहीं है, हमने पढ़ दिया बात खत्म हो गया, हाँ प्रभु जी ये खत्म हो गया ये सब हो गया, नहीं, हर श्लोक में शिक्षा है। अगर शिक्षा का एक अंश, अगर अंश हम उसको मीटर में कहें तो लेट्स से 10,000, अगर उसका वन ऑफ 10,000 हम कर सके, अपने जीवन में ला सके, तो हमारे जीवन में उद्धार होगा। तब परेशानी आने के बावजूद भी हमको परेशानियों का एहसास नहीं होगा, परेशानियों का पता ही नहीं चलेगा, परेशानी आई चली गई, लेकिन धारणा तो हमें बनानी होगी। अब हमें कितना सुनना है। कई बार लोग कहते हैं भाई देखो, जब हम कहीं मीटिंग में बैठे हैं तो लोग बात हमें तो सुनेंगे ना, भाई बहुत सारे बात सुनते हैं, आपको याद नहीं रहता, आप सुनिए जरूर, लेकिन उसको याद करने की जरूरत क्या है। आप कहीं कंपनी की मीटिंग में बैठे हैं, जो अपने काम के अपना शेयर किया, बात खत्म हो गया, बात खत्म, मिनट्स ऑफ द मीट आएंगे, बात कर लेंगे, लेकिन नहीं, हमारा ध्यान जो है उसमें बहुत जाता है। ध्यायति विषयान् पुंस संगः सुसुपजायते संगा संजायते काम कामा क्रोधो विजायते क्रोधाधो सम्मोह सम्मोहात् स्मृतिभ्रम स्मृतिभ्रांसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यायते, अगर हमने ध्याय किया चीजों का, हमको उसको एक्वायर करना पड़ेगा, लालसा होती है, लेकिन अगर हम भगवान को देखते रहेंगे तो भगवान को पाने की लालसा होगी ना। आंखों का काम तो हो गया, इच्छा तो हमारी है, तो अगर हम कोई चीज देखेंगे तो पाने की इच्छा है, भगवान को देखें तो भगवान को पाने की इच्छा होगी। और ये हम सब कर सकते हैं, हर व्यक्ति विशेष कर सकता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, या बीमार हो या सुखी हो, क्या फर्क पड़ने वाला है। देखिए, अगर आपके पास घड़ी है तो एक घड़ी यहाँ 100 रियाल की भी आती है और 10 रियाल की भी आती है, और बहुत सारी घड़ियाँ 100,000 रियाल की भी आती है। लेकिन मजेदार बात है, आप कोई भी घड़ी पहनो, समय एक ही होगा, समय नहीं बदलेगा। 1 लाख की घड़ी आपका समय अच्छा कर देगी, किसी वो नहीं है। राधा गोविंद महाराज बोलते थे कि देखिए, अगर आपने माउंट ब्लॉक का पेन ले लिया तो मत बोलो आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी या आपको श्लोक लिखने में आसानी होगी। नहीं नहीं, आप चाहे पेन का नाम बोल रहा हूं मैं, माउंट ब्लैंक पेन हो या छोटा सा कोई पेन हो, लिखना आपको है, राइटिंग आपकी है, पेन की राइटिंग नहीं होती है। तो ठीक इसी प्रकार आप एक श्लोक पढ़ें, आप पूरी किताब पढ़ें, पढ़ना आपको है, अनुभूति आपकी है, किताब में अनुभूति नहीं है। अनुभूति हमारे अंदर होगी, किताब में कोई अनुभूति नहीं है, किताब में तो ज्ञान है, और ज्ञान को अगर हमने विज्ञान नहीं बनाया तो गुजराती में कहते हैं पुस्तक में बाँचो पुस्तक में समायो। We read in the book and we submerge in the book, close the book, बात खत्म। आपको एक जोक सुना दूं। एक पंडित था, वो किसी गांव में कथा करने गया, रामायण की कथा की। जब रामायण की कथा हो गई, 7 दिन तक कथा हो गई, लोग आए, बड़े मजे करें, विदाई हुई, पंडित जी को नमस्कार किया, दान दक्षिणा दी और चले गए। अब गांव वाले बैठे, बोले यार कथा तो सुन ली, लेकिन यह पता नहीं चला कि राम का बाप कौन था। तो गांव वाले बोला अरे पंडित जी नजदीक है, पता कर लो पता कर लो पता कर लो। तो पंडित जी को बुलाया, बोले पंडित जी एक समस्या हो गई है, प्लीज। इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि जीवन में कभी आनंद नहीं आया। बोलो फिर? बोले एक समस्या रह गई, ये राम का बाप कौन था? तो पंडित जी ने जितनी उन्होंने दक्षिणा दी थी उनके सर पे मार दे, लो तुम्हारी दक्षिणा, मुझे राम के बाप का नाम नहीं बताना। जब तुम सुन ही नहीं रहे हो तो मैं तुम्हारी चीज करके क्या करूंगा, चलो जाओ। तो कभी कभार हम भी भागवत हम सुनते हैं, अपने गुरु सुनते हैं। कभी आप सुबह देखिए, हर रोज गुरु महाराज प्रवचन करते हैं, सुनते हैं, मना नहीं करते, अपने लगा दिया, अपने ये काम करें वो काम करें, ये काम करें वो काम करें, ठीक है। क्लास 35 मिनट गुरु महाराज खत्म हो गए, हाँ अच्छी क्लास थी, क्या पॉइंट थे पता ही नहीं। परसों गुरु महाराज ने बहुत शानदार बात बोली,
कि बोले शास्त्रों में लिखा है औरत, पशु, ढोल नगाड़े की जो बात होती है, तो ये ठीक है कि उनके अवगुण बताए गए हैं, लेकिन हमको उन अवगुणों के साथ जीना है, ये नहीं कहा गया है। उन अवगुणों को दूर करना है। इन द एंड बॉडी इज द वाई मीडिया, शरीर माध्यम खलु साधना। तो शरीर स्त्री का हो किसी और का हो, वो नीच नहीं हो जाती हैं। उसको हमने आपको उभारना है, परखना है। वही नहीं बस ये हो गया, जैसे बोलते हैं अरे लड़का बेवकूफ है, हमारा लड़का बेवकूफ है, बेवकूफ। अरे तो उसको चालाक बनाओ ना, खाली उसको बेवकूफ है काम हो जाएगा? नहीं। तो जो भी हमारे अंदर कोई कमी है, कोई बताता है, उस पर नाराज होने की जरूरत नहीं है, खुश होने की जरूरत है। अच्छा होगा तुमने मुझे बता दिया, मुझे पता ही नहीं था। कभी कभार हमें अच्छा नहीं लगता जो लोग बोलते हैं अरे आपने ऐसा कर दिया। नहीं, क्रिटिसिज्म, एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म एज ए माइलिंग स्टोन टू गो वन स्टेप अहेड। लेकिन हम तो वही है ना, अरे यार इतनी मेहनत से मैंने क्लास दे, बोले हैं क्लास बिल्कुल बेकार थी, मुझे मजा नहीं है। हमारी ना मान देना, कीर्तनीय सदा है। एक बार मैं क्या क्लास दे रहा था, तो क्वेश्चन आंसर हुए, तो बोल लगा प्रभु जी क्वेश्चन है। मैंने कहा बोलिए प्रभु जी क्या क्वेश्चन है? कि हमने ये श्लोक पहले भी लोगों से सुना है, लेकिन आपने वो नहीं बोला जो उन्होंने बोला था। मैंने कहा प्रभु जी मैं उनकी कथा सुन करके नहीं आया हूं, मुझे कैसे पता उन्होंने क्या बोला? कि नहीं, जब भागवतम एक है, भगवत गीता एक है, तो लोग अलग अलग क्यों बात कर रहे हैं? मैंने कहा लोग जो है अलग अलग अनुभूति की बात कर रहे हैं, अपने अनुभव की बात कर रहे हैं, अपने सेल्फ रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तुम्हारा सेल्फ रियलाइजेशन और मेरा सेल्फ रियलाइजेशन अलग अलग है। श्लोक चाहे वही हो, सेल्फ रियलाइजेशन अलग अलग है, इस बारे में मानो। अच्छा, मैंने कहा, तब मैंने कहा प्रति अक्षरे प्रति श्लोके नाना अर्थ गया। मे बी सेम श्लोका, same purport of Srila Prabhupada, same translation. If you hear from 200 different people, you will get a 200 different version of their anubhuti, of their liking. बोला oh, I was thinking. अच्छा एक और मजेदार बात बताऊं कि जब हम यहाँ आए, मैं यहाँ 16 अक्टूबर 2000 में आया, और लकीली दूसरे दिन 17 अक्टूबर को जो है मुझे उन्होंने इनवाइट किया था क्लास देने के लिए। तो वहां भगवत गीता का 6th चैप्टर चल रहा था। तो हमारे प्रभु थे हमारे साथ, उन्होंने कई 6 चैप्टर के कई श्लोक सुने। उसके बाद वो 1-2 जगह और गए, वहां भी 6 चैप्टर चल रहा था। उसके बाद यहां से वो जो है नाइजीरिया चले गए, और लकीली जब नाइजीरिया गए वहां उन्होंने इसको ज्वाइन किया, वहां भी 6 चैप्टर चल रहा था। तो उन्होंने मुझे ईमेल में क्वेश्चन पूछा, प्रभु जी व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट दिस 6 चैप्टर? एवरीबॉडी ओनली रीडिंग 6 चैप्टर। प्लीज गिव मी एक्सप्लेनेशन। अरे मैंने कहा भैया कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तुम 6 चैप्टर पहुंचे, आप कुछ दिन और रहो, 7th भी आएगा, 8th भी आएगा, 9th भी आएगा, 10th भी आएगा, सब आएंगे। बोले नहीं, बिकॉज इन कथार एवरीबॉडी 6 चैप्टर, हियर आल्सो 6 चैप्टर, प्लीज लेट मी नो। तो कभी कभी लोग नहीं समझते। जेन्युइन क्वेश्चन था कि हर जगह 6 चैप्टर कैसे होगा भाई? तो हम चाहे बोलते चले जाए, सुनने वाले को तो सुनना है ना भाई। हम तो गुरु महाराज कथाएं सुनते हैं, हम सुने तो सही, खाली टेप लगाने थोड़ी होता है। माना गुरु, अच्छा हम क्या समझ रहे थे, अरे तो टेप है। अरे वो टेप नहीं है भाई, गुरु महाराज सामने बैठे हुए हैं। अगर ये अनुभूति हमको मिल जाएगी ना साहब, हमारा जीवन संभल जाएगा। लेकिन वो ठीक है, एक किनारे टेप चल रही है, हम अपना काम भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, हाँ मजा आ गया, 1 पॉइंट पकड़ा, 2 पॉइंट, ऐसा नहीं है। जब तक हमारा डेडिकेशन नहीं होगा, कंप्लीट डेडिकेशन, हम परफेक्शन हमको नहीं मिल पाएगा। सो विद दिस I come to the conclusion of my talk. Thank you very, very much for giving me an opportunity to be with you, to share something about Krishna, his devotees, and speak whatever came in the chain of my thoughts. Hari Hari Bol.